amongst us the trainer for today, Professor Medha Kulkarni. Madam is from the Department of Swasthya at All India Institute of Ayurveda, and she will be giving the lecture for today's program, and it will be followed by question and answer series for clearing the doubts of the trainers. Thank you very much. Presentation start. Very good afternoon to all the medical officers who have joined Pan India, and I'm very much thankful to respected Dr. Jagdish, Mr. Jaggi sir for his blessings and kind words for this campaign. So moving ahead, first I would like to say few words to the medical officers all over the India, that you people are the torch bearers for this campaign. Through your presentations, we are going to reach to the masses, to the community, for the information which we are going to share with you today. As we all know that COVID situation started in India from January, and in March 20, WHO declared it as a pandemic, and it is repeatedly said that we as a medical system of India have to search some solution for it, and our Ayush Ministry took initiative and came up with all the guidelines, all the protocols, general guidelines, specific guidelines, and all these things, and we have given the solution to the community for this COVID situation, for this COVID pandemic. And the results which we are seeing today, that the recovery rate of India for COVID situation is around 96%. And I am pretty much sure that the involvement of Ayurveda medicine is a very important part, has created an important part in this recovery rate. That's what we feel that. So moving ahead, I will start my presentation. On behalf of All India Institute of Ayurveda, this campaign is in process, and it is the campaign for Ayurveda Day with the theme that COVID-19, Ayurveda for COVID-19. So coming to the Ayurveda, we all know that Ayurveda is a science of life. From first year of BMS, we have learned that Ayurveda is a science of life. But addition to this, I will like to say that Ayurveda is not just a science of life, but it is the knowledge system of life. Or Ayurveda too is derived from two words, that is Ayu meaning long life, not just life but long life, and Veda Vidnyane is the इसका जो meaning है वो Vidnyane, that means the Jnana, knowledge. So that means the Ayurveda is the knowledge system of healthy and happy life, not just life but healthy and happy life. And we all know that Ayurveda's objectives is the swasthasya swastha rakshanam aturasya vikara prashamanam cha. So by aturasya vikara prashamanam cha, we are taking care of the illness.
We are not just taking care of illness, but we are also restoring the wellness. And from that wellness, we move ahead with the happiness. Yoga has given us the Panchakosha theory, in which Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha and Anandamaya Kosha are explained. So Ananda Prapti, or seeking happiness, is the ultimate aim of human life, and that is achieved by Ayurveda, and hence moving from illness to wellness and to happiness is the prime objective of Ayurveda. That's what we want to convey to the community. Now next, Ayurveda is rooted we all in community. We all know that in Indian kitchen, all the spices are used. They are not just for making the food tasty, but behind those using of those spices, there is a scientific reason. So all these spices, ये जो मसाले हम यूज करते हैं, ये मसाले नहीं है, बट ये मेडिसिनल हर्ब्स है. हमारी रोज की जो ज़रूरतें हैं या हमारी रोज की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने में ये मसाले हमारी मदद करते हैं. सो ये जो आयुर्वेद की रूट्स है, ये हमारे दादी माँ के नुस्खे हैं या नानी माँ के नुस्खे हैं, या इन मराठी इट इज कॉल्ड एज आजीबाईचा बटवा, that is nanny's batwa. So all these spices are medicinal herbs which are used for preparation of diet. Diet is the supreme medicine. So with using this medicine with diet, we are taking care of health of the community, health of the family, health of the community, and by this we are building their immunity. And this is the reason that Indian people are having no severity or less severity in this disease. So Ayurveda is rooted in community, and by meaning community, it is in the public health also. So it has a potential to meet the health and wellness for all the community. Again, our ancient principles, that is a Panchamahabhuta theory or Tridosha theory or Lokapurusha Samya Siddhanta. Lokapurusha Samya Siddhanta or macrosome microsome concept is very much in practice in each and every aspect of our life. So Ayurveda is deeply rooted. That's why we, the Ayurveda fraternity, have come up with the solutions for COVID-like situation also. Now coming to the aims of Ayurveda, that is Swasthasya Swasthya Rakshanam Aturasya Vikara Prashamanam Cha, which I have already told you, or all of you know it better than me. So prevention, promotion and maintenance of health. Prevention of disease, promotion and maintenance of health is what we want to achieve. And how we achieve it? By the Trayopasambha, by following the Trayopasambha, that is diet, sleep and celibacy. So we know that diet, as I have earlier said, diet is the supreme medicine. So by following the diet rules, by हमारे जो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वक्त खाना है, ये सारे रूल्स हम अगर फॉलो करते हैं, and give rest to the body to recover from the wear and tear, and also observe the celibacy or sadvrutta, acharan, brahmacharya. So by accepting all these things, or all these, by practicing these three upastambhas, we can manage the diseases as well as we can maintain the health. One more thing is that Ayurveda is a personalized approach. It is not for all. It is not the same for all. It is the individualized or personalized approach, and it is a holistic approach. We don't only consider the medicine, but we consider the diet, we consider the lifestyle, we consider the how you eat, how you sleep, when you sleep, or the bath, how you take the bath,
massage, exercise, all these things are included. Hence, it is the personalized and holistic approach. Now, we have to see the strength of Ayurveda. We all know that Ayurveda has three, we can say that it is for the three, we can achieve three things by Ayurveda: prevention of disease, treatment of disease, and restoration of health. How we can achieve this? Through Ayurveda. So, from ancient time, from many thousand years, we know that the evidences are documented in the form of Sahitas. And in the Sahitas, right from the birth of the or the conception of the embryo till the geriatrics, all the things are mentioned, and how the all we have to take care in each and every phase of life is given or is documented. So it is time tested. Then the medicines or herbs which we are using are cost effective. As I have earlier said, that kitchen pharmacy is our main pharmacy or main herbs which we are using. So these are cost effective. We are using it daily. We procure them in every month. Again, when first it was Ayurveda Vaidyas were preparing their medicines on their own. So it was also cost effective. But nowadays, since almost 50-60 years, many pharmacies have come in the market to fulfill the demand of Ayurvedic medicines for the community. But in these pharmacies also, quality and safety aspects of the medicines is maintained, and the efficacy part is already assured since it is the time tested medicinal branch. Then immunomodulators and rejuvenation. This is the very specific part of Ayurveda. As Swasthasya Swasthya Rakshanam is our aim, so to build up our bala or immunity, Vyadhi Pratikara Shakti, and to maintain it through Rasayana Sevan is also a strength of Ayurveda. No other medicinal system gives importance to these things. But in Ayurveda, we simple medicines like amla, if you consume amla daily or consume guduchi or even the diet part, that is the dugdha or gruta, that is kshira gruta rasayana. So every day if you consume all these simple things, your immunity is restored and it is maintained, and it also acts as a rejuvenation. Then, as I have earlier explained, that holistic integrated approach, Ayurveda says that ekam shastram na adhyayam. It says that wherever it is the other system has good things, you accept those things. So in our COVID situation also, in our CHC center also, we have provided the modern facilities to our investigative facilities to our patients, that our patients are all the pulse oximeter is there, then their ECG is noted, investigations are done. So all these measures are done, as well as the yoga part is also taken for their mental health, it is taken care of. So all the four aspects of health, that is physical, mental, spiritual and social, are taken care of. Hence it is the holistic integrated approach. And there are various choices of treatment. We know that Ayurveda treatment are of two types, that is the Samshamana and Samshodhana. And in Samshodhana also there are multiple treatments like Pancha Karma are there, Panchakarma biopurification is there, then other like Snehan is there, then Kshara Chikitsa, Agni Chikitsa. So there are multiple choices of treatments are available in Ayurveda. Yoga. So yoga is the spiritual face of Ayurveda and Ayurveda is the physical face of yoga. So ultimate aim of yoga is the moksha prapti, and ultimate aim of Ayurveda is also the moksha prapti. So in between these two sciences go hand in hand, and yoga helps in maintaining the mental health or psychological health of the person, which is one component of health, is described in the definition of swasthya, that is samadosha samagvishya samadhatu balakriya prasanna atmendriya manaha
Swastha iti abhidhyate. That means not only physical part is important, but all the three other aspects, that is the mental part, then spiritual part, and social part is also, social health is also important. So all these mental and for spiritual healing, yoga and the many things which are included in Shirodhara or Shiromasu, Shiropichu, all these treatment modalities helps to maintain the mental health or psychological health. Then further moving to the strength of Ayurveda, how they are in practice, that is, it is accepted by the community. It is a holistic concept of health which is accepted by the community. It is individualized as well as universal approach. Like I have earlier said, Loka Purush Samya Siddhanta, that is Pindi te Brahmandi and Brahmandi te Pindi. What is there in the human being is present in the cosmos. So this is the individualized approach. At the same time, it is the universal approach. Now also we see that we are not restricting Ayurveda to India itself. We are also want to promote Ayurveda globally to take care of the health of entire globe. Now stress on public health and hygienic and use of natural product. As we have already seen that kitchen pharmacy or the metallic components which we use or the simple measures of like Ushnodaka Sevan or Haldiwala Doodh. So all these are the natural and simple measures which we are taking for the treatment part. So, and Ayurveda also has multiple clinical strength and unique therapeutic approach through which we achieve the preventive, promotive, predictive and curative therapy or treatment management of any disease, not only COVID but any disease. Ayurveda knowledge system, we have 8 specialties. We all know that we have 8 specialties: Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga, Shalya, Damshra, Jara, Vrusha. So not only internal medicines, but we have solutions for pediatric, we have solutions for psychological problems, we have solutions for ENT eye problem, so and geriatrics problems. So all these specialties are included in Ayurveda, which we all know. So why I am again telling you, we all know these things which are in Ayurveda, but we have to give this, we have to convey these things to the community, that Ayurveda is not only Jadi Booty, but it has many specialities and we can treat the balas also as well as the Vruddhas also. So हम बूढ़ों की भी ये ले सकते हैं, as well as we have also surgery also in our part. Rasayan is our specialty. So all these things are to be conveyed to the community that Ayurveda is not only Jadibooty and it is not a folklore medicine. It is the scientific knowledge system which is useful for the healthy and happy life. And it is also a holistic management and have many treatment modalities like biopurification, oral medication and all those things. Now there are questions in community that how the Ayurveda person can treat a COVID-like situation, because COVID is a communicable disease. So there is an answer. We all know that answer. The Janapada Dhamsa Rogas are explained in Charaka Samhitas, and the same Rogas are explained in Sushru Samhita as Upasargika Rogas. Janapada Dhamsa are the Vyadhis. और ये जो व्याधि होती है वो एंटायर कम्युनिटी को अफेक्ट करती है, और उसके जो रीजंस बताए, उसके जो कॉजेज बताए हैं वो है वायु, जल, देश एंड काल. सो ये जो 4 बताए गए हैं उनको हमें करेक्ट करना है, और हमारे आयुर्वेद में इनके करेक्शंस के भी उपाय दिए हैं. जैसे वायु के लिए वायु शुद्धिकर द्रव्यास और हवन, विच इज ऑलवेज डन इन द temples. So it is to be practiced. Or Havana is also, Agnihotra is a practice in many parts of India. So this should be made popular in all the parts of our country,
as a daily practice. So and the pollution, secondly the pollution part will also be taken care of by this havan. Some may ask questions that while you burn these medicines there will धुआं आएगा, तो धुआं से पोल्यूशन बढ़ सकता है? सो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो धुआं आएगा वो मेडिसिनल हर्ब्स का होगा. ये जो मेडिसिनल हर्ब्स है ये एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के होते हैं और इनसे जो इस तरह के जीव जंतु है उनका नाश हो सकता है. इसके ऊपर रिसर्चेस हो चुकी है. देन फॉर जला पार्ट, as a causative agent for Janapada Dvamsa Vyadhi, there are many herbs or there are many purification methods are explained in the Ayurveda. So उष्णोदक, पानी गर्म करके लेना है या उसमें कुछ ऐड करना है, ये सारे उपाय हमारे आयुर्वेद में बताया गया है. देश के लिए या भूमि के लिए भी भूमि शुद्धिकरण द्रव्यास एक्सप्लेन किए गए हैं, तो उनका सम्मार्जन करना है, उनका स्प्रिंकलिंग करना है. ये सारे उपाय जनपद ध्वंस व्याधि के प्रिवेंशन के लिए या करेक्शन के लिए आयुर्वेद में बताया गया है. आप सबको मालूम है कि काल के ऊपर तो किसी का ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो वो हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो 3 चीजें हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कर सकते हैं. एंड जो सुश्रुत ने बताया है, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात विश्वासात सहभोजनात सहशय्यासनात चपी वस्त्रमाल्यानुलेपन. तो आज के जो कोविड के लिए प्रिवेंशन के लिए हम मेजर्स कर रहे हैं, वो मेजर्स इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं कि गात्र संस्पर्शात निश्वासात, कोविड जैसी बीमारियां जो फैलती है ये इन्हीं प्रकार से फैलती है और इनको कंट्रोल करने के लिए हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी करना है, या फिर क्वारंटाइन जैसे जो मेजर्स हमने लिए हैं, ये सारे जो मेजर्स है ये यहाँ पे हम कर सकते हैं. तो इसलिए 2 गज की दूरी तो है, लेकिन आयुर्वेद भी इसके लिए जरूरी है. और सेकंडली सद्वृत्त में बहुत सारे मेजर्स दिए हैं कि कैसे आपको उठना है, या घर से बाहर आते हैं तो आपको पैर धोना है, हाथ धोना है, खाने के पहले हाथ धोना है, अगर आप ये वॉशरूम यूज करते हैं तो उसके बाद आके हाथ धोना है. तो हाथ धोने का जो ये हम बताते हैं ये हमारे आयुर्वेद में पहले से बताया है. या फिर हाथ से हमें नाक को नहीं छूना है, मुंह को नहीं छूना है, आँख को नहीं छूना है. तो ऑल दीज मेजर्स आर explained in Ayurveda in Sadvrutta, and it is the need of our to practice them or to imbibe in the community for these measures. So इस तरह के measures हमें popularize करने हैं community में, जो आयुर्वेद में बताया है. So ये हमें आप लोगों को पहुंचाना है community में, ये बहुत strongly पहुंचाना है, क्योंकि आगे जाके भी कोविड नहीं तो अदर टाइप काइंड ऑफ वायरसेस आ सकते हैं, अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आ सकते हैं. तो इनके प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये कहा ही है, तो प्रिवेंशन के लिए हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है. और जैसे बच्चों से लेकर, जैसे स्कूलिंग से लेकर हमें इन चीज़ों का प्रसार करना है, प्रचार करना है. देन सेकंड एक ये आता है कि सवाल आता है कि क्या कोविड का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से हो सकता है? कि आयुर्वेद में कहाँ दिया है कोविड का ट्रीटमेंट? तो नहीं दिया है. तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे व्याधि है जो आजकल पाए जाते हैं, न्यूली इमर्जिंग डिजीजेज हम जो कहते हैं, जैसे डेंगू है, चिकुनगुनिया है, या जिका वायरस फीवर है, सॉर्स है, एड्स है, ये सारे डिजीजेज आयुर्वेद में बताए गए नहीं है. लेकिन आयुर्वेद में एक सूत्र बताया गया है कि अनुक्त व्याधि की चिकित्सा कैसे करते हैं, विकारानाम कुशरोन्य जीर्यात कदाचन. तो इस सूत्र के अनुसार हम भले उस व्याधि को नाम ना दें, लेकिन हमारे जो त्रिदोष सिद्धांत है तो इनके द्वारा इन व्याधियों का जो संप्राप्ति है वो हम पता कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे गणित में बेसिक संख्याएं होती है और बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, गुणाकार, भागाकार, उसी तरह से हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट दी हुई है. त्रिदोष दिए है, 7 धातु दी है, या मल दिए, ये कैसा होता है, सब उनके क्षीण और वृद्धि कैसी होती है, वो विशिएट कैसे होती है, ये सारी चीजें हमें बताई गई है. तो उनका यूज करके हमारा दिमाग लगा के हम उनकी संप्राप्ति कैसे होती है ये कर सकते हैं, और उसका संप्राप्ति भंग हमें कैसा करना है ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है.
जैसे सामान्य विशेष सिद्धांत है या चिकित्सा पंचमहाभूत सिद्धांत है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करके हम इन्हीं ये व्याधियों की चिकित्सा कर सकते हैं। ये हमें पता है सबको, ये हमें कम्युनिटी में बताना पड़ेगा कि हम ये चिकित्सा इस सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिकित्सा चतुष्पाद, हमें मालूम है कि कोई भी व्याधि हो तो इसकी चिकित्सा करने के लिए हमें ये चिकित्सा चतुष्पाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फिजिशियन है या वैद्य है, देन मेडिसिन ड्रग है, देन पेशेंट है, और नर्सिंग या केयरिंग जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो है। ये चारों पाद अगर अच्छे है तभी वो व्याधि क्योर हो सकता है या उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो कोविड की सिचुएशन में हमने देखा है कि वैद्य का इम्पोर्टेंस तो हमें पता है। सो आयुर्वेद या आयुष मिनिस्ट्री ने सारे वैद्यों को मिला के, सारे वैद्यों को, एक्सपर्ट्स को बुला के जो प्रोटोकॉल्स बनवाए, तो उस प्रोटोकॉल्स को यूनिफॉर्मली सभी नेशनल लेवल पर उसको सर्कुलेट किया है और एजुकेशन दिया है सारे लोगों को कि ये कैसे यूज करने हैं। बार बार हमें उनका प्रसार करके हमने कम्युनिटी को बताया है। देन मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन लेके फार्माकोपिया से ड्रग स्टैंडर्डाइज मेडिसिन जो क्वालिटी और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरे हैं, एफिकेसी जिनकी अच्छी रिसर्च बेस से ये हो गई है, एविडेंस उसके साथ में जुड़ा है और वो प्रूव हो गई है। तो एंड देन अगेन द नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ का ट्रेनिंग करके, जैसे अगर कोविड वार्ड है, आइसोलेशन में कैसे मेजर्स करने हैं, डॉनिंग कैसे करना है, डॉफिंग कैसे करना है, या सारी उनके जो रीडिंग्स लेने हैं, इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, वो सारे कैसे करने हैं, इसका ट्रेनिंग दे के नर्सिंग स्टाफ को दे देना है। और अहम सबसे चीज जो है पेशेंट, क्योंकि पेशेंट का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी है। पेशेंट, बताया गया है कि आढ्यो रोगी विशक वशक ज्ञापक हो सत्ववान। पेशेंट जो है ज्ञापक होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए। और इसके लिए हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके तहत हर पेशेंट को एवरीडे पेशेंट को अवेयर किया जाता है, उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको एजुकेट किया जाता है कि आपकी डिजीज क्या है, आपको क्या खान पान रखना चाहिए। तो इस तरह से पेशेंट का अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट इन द ट्रीटमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ज्ञापक हो करने के लिए। एंड सत्ववान अपनी, पेशेंट का मनोबल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमने देखा है लास्ट अभी 8-9 महीने में कि जो पेशेंट का मनोबल अच्छा था उनका रिकवरी अच्छा होता है। तो पेशेंट को सत्ववान होना, पेशेंट को ज्ञापक होना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये चारों जो 4 फोल्ड है हेल्थ केयर मैनेजमेंट के, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ चिकित्सा चतुष्पाद है, ये आप लोगों के लिए है। ये आप सबको पता है कि कोविड-19 के इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। ये जो कोरोना है, ये इसका एक लार्ज फैमिली है वायरसेस की, और इसके मोस्टली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या प्राणवायु स्रोत से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो इसमें हम पाते हैं। तो ये है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, ये सारे हमें पता है और इनको हमें पब्लिक तक पहुंचाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी आयुर्वेद किसी भी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए चिकित्सा सूत्र बनाया जाता है। तो सिमिलरली कोविड के मैनेजमेंट के लिए भी चिकित्सा सूत्र बनाया गया है, जिसमें 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है प्रिवेंटिंग द वायरस, यानी एंटरिंग टू द आवर सेल्स। तो वायरस को प्रिवेंट करना है, हमारे अंदर आने से, हमारे बॉडी में आने से प्रिवेंट करना है। तो वो कैसे, जैसे हम निदान परिवर्जन कहते हैं ना, जिसमें फर्स्ट स्टेज हमारे चिकित्सा सूत्र होती है निदान परिवर्जन। तो ये जो है, ये हमें निदान, वो हमें अटैक न करे, इसलिए जो आयुर्वेदा के प्रोफिलैक्टिक मेजर्स है, जैसे हमें गार्गलिंग करना है, जैसे स्टीम इनहेलेशन है, अणु तेल का प्रयोग करना है, ऑयल पुलिंग करना है, ऑयल स्विचिंग करना है। तो ये सारे जो मेजर्स है, ये सारे मेजर्स के द्वारा हम वायरस को हमारे बॉडी में एंटर करने से बचाव कर सकते हैं।
इतना करके भी अगर आपका बल कम है और वायरस आपके शरीर के अंदर आ ही गया है तो उसको कैसे रोकना है, आगे बढ़ने से कैसे रोकना है, उसको असिम्प्टोमेटिक ही रहने देना है, सिम्टम्स में परिवर्तन ना होने देना है या माइल्ड टू मॉडरेट तक ही उसको रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आयुर्वेदा में सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट हम करते हैं। जैसे बुखार आया तो संशमनी दी, या फिर प्रकृति विघात, जैसे मैंने पहले कहा कि कोरोना की जो संप्राप्ति है वो हमने पता करके उसका विघात कैसे करना है। तो इसके लिए कटुतिक्त रसात्मक द्रव्य, क्योंकि कोरोना में प्राणवश स्रोतस की ये हमने देखी है, तो उसके अनुसार कफ प्राधान्य वहां पे है, तो उसके अनुसार सामान्य विषय सिद्धांत के अनुसार हमें प्रकृति विघात या उसके विरोधी चिकित्सा हम करनी है। तो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट हमें करनी है। और हो गया है, सिम्टोमेटिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उसके बाद हम उससे क्योर हो गए हैं, तो हमें क्या करना है, आगे जाके हमारे शरीर की कुछ क्षति हो गई तो उस क्षति की पूर्तता हमें करना है, उसका तो जो डैमेज हुआ है उसको हमें फिर से रिस्टोर करना है, हमें हमारा बल फिर से प्राप्त करना है। तो हमें रसायन चिकित्सा है, जैसे च्यवनप्राश है, जैसे गुरुचि है, इन सारी चीज़ों का यूज करके हमें फिर से हमारी हेल्थ रिस्टोर करनी है, इलनेस से वेलनेस और वेलनेस से हैप्पीनेस की तरफ फिर से हमारी जर्नी ले जानी है। तो ऑल दिस प्रोफिलैक्टिक मेजर्स जो है वो हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपर्ट्स ने बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, टास्क फोर्स ने करके ये सारे बनाए हैं, जिसमें इम्यूनिटी प्रमोटिंग मेजर्स है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन करने के लिए मेजर्स है, या फिर जनरल मेजर्स है जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये सारे मेजर्स है। इन आयुष्वात एक ये बताया गया है कि रेगुलरली आप इसका प्रयोग कीजिए आयुष्वात का, जिसमें कुछ हर्ब्स बताए गए हैं। सो अलॉन्ग विथ मेडिकल या हर्ब्स या ट्रीटमेंट के पार्ट के साथ में, जैसे हमने कहा होलिस्टिक अप्रोच है, तो सम योगा प्रैक्टिसेस, मेंटल हेल्थ, मैंने कहा पहले भी बताया कि पेशेंट का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी होता है इन कोविड लाइक सिचुएशन में। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक योगा का प्रैक्टिस हर रोज कर सकते हैं, ये हमें कम्युनिटी में पहुंचाना है। और उसमें कुछ नहीं, एक एसओपी हम लोगों ने बनाई है, उसमें सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप एक्सरसाइजेस रहती है थोड़ी सी, उसके बाद कुछ बैठने हुए आसन और सुपाइन पोस्चर्स के आसन, प्रोन पोस्चर के आसन है, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्सेशन शवासन के द्वारा या मकरासन के द्वारा, एंड प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन 10 मिनट टू इम्प्रूव अवर मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये सारा हमें साथ साथ में करना है फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। So these are the measures which we have already discussed. Anutelnus, which creates a physical barrier which prevents the virus in entering the हमारे सिस्टम में एंटर होने से बचाता है। Then gargling and steam inhalation. गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध, हल्दी हम पता है तिक्त रसात्मक है, कटु रसात्मक है, एंड अलॉन्ग विथ मिल्क विच इज द रसायन, तो ये रसायन के तौर पे भी काम करती है एंड वो हमें ट्रीटमेंट पार्ट में भी यूज करती है, एंड योगा। तो जनरल मेजर्स में अगेन ड्रिंक वार्म वाटर। तो हमारे आयुर्वेद में हम बताते हैं कि कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने के कारण होती है, और आम पाचन के लिए वार्म वाटर इज द बेस्ट, उष्णोदक सेवन इज बेस्ट। सो कोविड लाइक सिचुएशन में भी हमें वार्म वाटर का प्रयोग करना चाहिए, और इसके बारे में बहुत सारे रिसर्चेस भी हो चुके हैं, और ये रिसर्च के कसौटी पे खरा उतरा है, और ये हमें वार्म वाटर रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। स्पाइसेस हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हल्दी और लहसुन है वो उष्ण गुणात्मक है, जीरा धनिया है वो शीत गुणात्मक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस स्पाइसेस कैन गिव द मैजिक रिजल्ट्स इन ऑल द सिंपल कंडीशंस, लाइक हमें खांसी है या थोड़ा सा बुखार है या फिर इनडाइजेशन है या फिर हमारी टेस्ट मुंह का स्वाद खराब हो गया है। तो ये सारे लक्षण जो कोविड में दिखते हैं उनके लिए ये जो रेकमेंडेड स्पाइसेस है, ये इनका कुकिंग में प्रयोग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका महत्व हमें कम्युनिटी तक ले जाना। च्यवनप्राश ये इम्यूनोप्रोटेक्टिव है और इसका रोल बहुत अच्छा है, विच हेल्प्स टू प्रमोट द सेलुलर लेवल, इम्यून स्टिमुलेशन होता है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन होता है। आंवला और अमला के साथ में बहुत सारी अदर मेडिसिन भी इसमें साथ में है, आप सबको ये पता है।
और इसका प्रयोग डेली रेगुलरली करने के लिए हमें कम्युनिटी में ये करना है। कम्युनिटी में बहुत देखा जाता है कि लोग विटामिन और मिनरल्स का डेली सेवन करते हैं, तो उसके साथ साथ में हम च्यवनप्राश को भी पॉपुलराइज करें तो दे कैन गिव वेरी मैजिक रिजल्ट्स। सो इम्यूनिटी बढ़ाए तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने से ही प्रिवेंशन के जो हमारा ये उद्देश्य है उसको साध्य कर सकते हैं। आयुष क्वाद इसके बारे में हमने बताया है, लेकिन एक क्वेरी आती है आयुष क्वाद के बारे में कि इसके सेवन से उष्णता बढ़ जाती है, शरीर की उष्णता बढ़ जाती है। तो इसका सेवन जो करना है वो वैद्य के सलाह से करना है। और एक बात ध्यान रखनी है, इसमें तुलसी, मुनक्का, दालचीनी जो है इनका 1 पार्ट लिया तो काली मिर्च और शुंठी का जो प्रोपोर्शन है वो 1/4 ही लेना है। और इसको फांड के जैसे बना के, इवन दो इट इज नेम्ड एज क्वाथ, तो इसका प्रिपरेशन जो हमें करना है वो फांड के जैसे करना है एंड उसके बाद इसका सेवन करना है। अगेन आयुष क्वाथ, उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए या पैलेटेबल करने के लिए हम उसमें लाइम ऐड कर सकते हैं, नींबू ऐड कर सकते हैं या जैगरी ऐड कर सकते हैं, और 1 या 2 बार उसको ले सकते हैं। और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अम्लपित्त की प्रॉब्लम है या उष्णता के विकार है, उनके लिए वैद्य की सलाह से ही ये लेना अच्छा रहेगा, ये हमें सबको बताना है। इवन दो इट इज वेरी पॉपुलराइज ऑन, सभी फार्मेसी कंपनियां अभी बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया है, कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, लेकिन एक याद रखना है कि इसको वैद्य की सलाह से ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गोल्डन मिल्क और हल्दी वाला दूध, तो ये इसका महत्व ये है कि ये रेगुलरली कंज्यूम, दूध जो है वो रसायन है और हल्दी जो है वो एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, तो इनका कॉम्बिनेशन हम लेके ये कर सकते हैं। तो आजकल जो ये रहता है, एक चेन है इसकी मिल्क इसकी, तो उनके द्वारा ये बहुत पॉपुलराइज किया गया है, टर्मरिक मिल्क या टर्मरिक लाटे करके उसका ये पॉपुलराइज हुआ है। तो यूथ को ये करने के लिए, यूथ को हमें अट्रैक्ट करने के लिए इसको हम इस तरह से दे सकते हैं। यूथ जो होता है वो ग्रीन टी लेते हैं, वो टर्मरिक लाटे लेते हैं, तो क्यों ना हम गुड़ूची सिद्ध क्षीर है या शतावरी सिद्ध क्षीर है या गोल्डन लाटे यानी हल्दी वाला दूध है, इसको हम कम्युनिटी में पॉपुलराइज क्यों न करें, जिससे उनका स्वास्थ्य घर में ही वो अच्छा बना सकते हैं या इम्यूनिटी उनकी बढ़ा सकते हैं। नस्य ओनली 2 minutes 2 to 5 minutes it take to put this प्रति अनुतैल या प्रतिमर्शन नस्य, जो हमारे डेली रेजिमेन का एक पार्ट है, हमारे दिनचर्या का एक पार्ट है। तो मसाज के साथ में या एक्सरसाइज के साथ में ये चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनको हम अगर हमारे डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें या एक हमारा जीवन का हिस्सा बनाएं, तो इससे बहुत अहम हमें फ़ायदे हो सकते हैं। और ये हमें कम्युनिटी में पॉपुलराइज करना है कि ये सिंपल चीज़ों का यूज़ करके आप आपका स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं। तो अणुतेल के, अगर अणुतेल अवेलेबल नहीं है तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते, गाय का घी यूज़ कर सकते हैं या तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल आप 2-2 ड्रॉप्स आपको डालना है आपके नासा में और दोनों तरफ डालना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप आपके वैद्य की सलाह से इसको करना है। इसका एडेड बेनिफिट इसके साथ में, जैसे ये एज अ प्रिवेंटिव लेयर फ्रॉम द एंट्री ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वायरस, ये तो होता ही है। जैसे मास्क पहनते हैं, ये बायो मास्क है, हम बायो मास्क पहन रहे हैं हमारे नोज के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ नस्य के बहुत सारे फायदे हैं जो हमें, जैसे हमारे गर्दन में तकलीफ है या फिर हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो ये सारे बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स हैं नस्य के, जो हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। इन्हेलेशन, सादे पानी के बजाय हम उसमें पुदीना के लीव्स डाल सकते हैं या अजवाइन डाल सकते हैं, तो वो बेहतर रिजल्ट देते हैं। और ड्राई कफ या सोर थ्रोट जो कोविड के लक्षण हैं, तो घर पे अगर शुरुआत है उसकी, तो आप ये स्टीम इन्हेलेशन लेके उसको काफ़ी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं इन्फेक्शन को बढ़ाने से। अंशमणि वट्टी, गुडुची, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, गुडुची इज अ
Tikta rasaत्मक द्रव्य, and again it is a rasayan. So use of Guruji in fever, in COVID, in pre-COVID also, and in COVID also, it gives very immense benefits. So it is very beneficial as an immunomodulator as well as the treatment for the fever. So along with medicines, earlier I have explained you that diet is also important. महाभैषज्य, आहारो महाभैषज्य, आहार जो है वो महाभैषज्य है. लेकिन ये करने के लिए आयुर्वेद में जो कैसे खाए, कब खाए, कितना खाए, ये सारे जो चीजें हैं उसका अहम महत्व होता है. और षड्रसात्मक बैलेंस डाइट होना चाहिए. आपकी इम्यूनिटी आपके डाइट पे निर्भर करती है. मेडिसिन का क्रम तो बाद में आता है, तो पहले आपका डाइट ठीक करना है. आप पहले आपकी दिनचर्या को ठीक करना है, और डाइट को ठीक करने के लिए या डाइट अच्छा लेने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. कब खाए ये बहुत महत्व है. हमें बताया गया है कि जब आपको भूख लगे तभी आपको खाना है. तो डाइट के रूल जो बताया गया, आहार विधि विशेष आयतन में भी बताया है, आहार सेवन काल में भी बताया है कि कब खाना है. तो जब हमारा शरीर हमें बताता है कि मुझे अभी अन्न की ज़रूरत है, तभी हमें खाना है. और ये एक सर्काडियम रिदम जो बताया गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो उसमें हमारे शरीर हमें सिग्नल देता है कि मुझे अभी भूख लगी है, मुझे खाने की ज़रूरत है, वो देते हैं. उसके बाद क्या खाए ये भी बहुत ज़रूरी है. षड्रसात्मक आहार होना चाहिए, उसमें मधुर रस के साथ साथ में बाकी सारी रस भी उसमें होने चाहिए. एंड हाउ मच, कितना खाना चाहिए. तो ये शास्त्र में बताया गया है कि आपके इमेजिनरी आपका स्टमक के 4 पार्ट अज्यूम कीजिए, उसमें से 2 पार्ट जो है वो आपको खाना है. उसके साथ में गुरु नाम अर्ध संहितम ये भी रखना है. लघु नाम न अति तृप्तता, अगर लघु पदार्थ है वो बहुत नहीं खाने, और गुरु पदार्थ है वो भी थोड़े से बचा के खाने हैं. उसके बाद एक भाग जो है वो हमें छोड़ देना है, और एक भाग जो है लिक्विड के लिए लेना है. तो ये सारे सिंपल चीज़ें हमें सोसाइटी में, कम्युनिटी में, लोगों में पहुंचानी है. तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम रहती हैं. पहले हमने बताया था कि लॉन्जिटिविटी, हमारे आयुर्वेद, आयु इज द लॉन्ग लाइफ. तो ये बनाने के लिए हमें हमारा जो 24 घंटे है उसका डिवीजन कैसे करना है, जिसमें हमें हमारे फैमिली के लिए भी कमाना है, हमें हमारे शरीर की भी क्षतिपूर्ति करनी है, हमारा खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, और ना कि फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी अच्छा रखना है. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए अगर हमारा जो क्लॉक है 24 आवर्स है, उसको हम अगर 3 भागों में डिवाइड करें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 8 घंटे रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हमारी स्लीप जो है वो अच्छी होनी चाहिए. उसके लिए हमें अच्छे मेजर्स लेने चाहिए. उसके बाद जो है वो 4 घंटे जो है यानी 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमें फैमिली के साथ में गुजारना है, और सुबह से 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमें ऑक्यूपेशन, हमारे फैमिली के लिए, हमारे जो उदर निर्वाह के लिए जो कुछ व्यवसाय हम करते हैं उसमें करना है. तो ये सारा संभालते समय हमें सद्वृत्त को कभी भी नहीं भूलना है. सद्वृत्त को या आचार रसायन को कभी भी भूलना नहीं है, जिसके बाद हम वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं. एडिक्वेट स्लीप भी, हमारी नींद भी पूरी हो जाती है. उसके साथ साथ में सीजनल पंचकर्म जो है वो भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिसके द्वारा हम हमारे शरीर का रेगुलरली, पीरियोडिकली प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं. और इसके साथ साथ में डाइट और न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मसाज और जो हर्ब्स बताए गए, मेडिसिनल हर्ब्स बताए गए, उनका प्रयोग करके हम हमारा स्वास्थ्य और हमारी इम्यूनिटी बरकरार रख सकते हैं. There are few questions which are already answered on the ministry's website. So all these are in my presentation. I have already given answer to these questions. If anyone wants to ask, these are the protocols developed by or guidelines developed by the Ministry of Ayush after taking inputs from all the experts. Now this is the spreadsheet which we have prepared in All India Institute of Ayurveda for the COVID management, Ayurveda management by COVID.
So we have divided the pre-infection or the prevention part, or the asymptomatic cases, mild symptoms, moderate symptoms, for which what Ayurveda interventions we use. And we used all these interventions as per the protocol developed by Ayush Ministries. You can see here that the gargling with haldi and salt solution, then Guduchi Pipili Churna, Ayush Kwath twice daily, Anutal Pratimashanasya regularly, then steam inhalation. All these things are practiced in CHC ward in AIIA. But see here that severe symptoms. So we have kept it red. So we are not. हम आपको ये नहीं कह सकते कि हम सीवियर सिम्टम्स के लिए आयुर्वेदा का प्रयोग प्रभावशाली हो सकेगा या इफेक्टिव हो सकेगा. हमारा जो आज तक का अनुभव है उसमें हम ये कह सकते हैं कि प्री इन्फेक्शन, असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स के लिए आयुर्वेदा निश्चित रूप से बेनिफिशियल हो सकता है. एंड अगेन इन द पोस्ट कोविड सिचुएशन, दैट इज रिहेबिलिटेशन, इसमें हमारे जो रसायन चिकित्सा है वो बहुत अच्छी काम करती है. सो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में हम देखते हैं कि ये सारे चीज़ें जो है हार्ट, लंग्स, ब्रेन रिलेटेड सारे सिम्टम्स हम दिखाई देते हैं, जिनकी चिकित्सा है, जिनकी मैनेजमेंट हम आयुर्वेद से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. पोस्ट कोविड में भी हम आयुष क्वाथ, समशमटी वटी, ऑल दिस थिंग्स, मुलेठी पाउडर, च्यवनप्राश, ऑल ये सभी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन ये सारी मेडिकेशन जो है वो आफ्टर कंसल्टेशन या इन कंसल्टेशन विथ आयुर्वेदा फिजिशियन ही लेनी चाहिए. ये हमें बार बार कम्युनिटी में इम्बाइब करना पड़ेगा. सो अगेन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ों के आंसर्स आपको पहले ही बताए दिए गए. एंड दीज आर सम फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द हर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन द मेडिसिन्स ऑफ were used in the COVID management. And these are the few glimpses of All India Institute of Ayurveda CHC centers, where we have utilized all the 4 Chikitsa Chatushpada. And left side you can see the pictures of yoga practices done by the healthcare workers as well as the patients. In yoga it is Maitri, Karunya, Mudita. So Maitri, Karunya, compassion. So all these things are very useful in treating COVID-like conditions, and holistic management through all the sciences is very important in management of COVID. So with this we stand for care with compassion in AII. Thank you.